Hello everyone, welcome back to Right Concept Learning, my YouTube channel. I am Raj Chetri. So today I am going to discuss lecture number 3 on class 10 physics, chapter light. So before this we had discussed about the basic features of spherical mirrors and even the plane mirrors, and some terminology also we discussed. So today we will be discussing on sign convention, new Cartesian sign convention for mirrors and ray diagrams, how to draw the ray diagrams and all. Okay, so welcome to my channel. I am Raj Chetri for you, and my channel's name is Right Concept Learning. After watching this video, if you like it, you can please share and you can subscribe so that you will get from time to time. Thank you. So, new Cartesian sign convention for mirrors, spherical mirrors. Okay, we can write spherical mirrors, spherical. But when we talk about spherical mirrors, the plane mirror is involved there. Okay, because every point on the spherical mirror is supposed to be a small plane mirror. Okay. So what is this new sign, Cartesian sign convention? ये Cartesian sign convention होता क्या है? साइन कन्वेंशन का मतलब होता है कि एक कन्वेंशन, एक रूल बनाया गया है कि जो अलग अलग डिस्टेंस होता है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, फोकल लेंथ वगैरह, रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह, इसका लोकेशन के हिसाब से ये कहाँ पे है, लोकेशन के हिसाब से उस डिस्टेंस को कभी पॉजिटिव लेते हैं, कभी नेगेटिव लेते हैं. तो टू नो अबाउट दैट देयर इज सम रूल्स. साइन कन्वेंशन मतलब रूल है, उस रूल को फॉलो करना पड़ेगा. अब यहाँ पर देख लो, मान लो एक कनकेव मिरर है, देयर इज अ कनकेव मिरर. आई हैव ड्रॉन अ टेंजेंट at the pole, and you know pole is the midpoint of the mirror, midpoint of the extent of the mirror. pole को टच करके मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, and that I supposed as y axis, and a horizontal line through P is drawn, which is principal axis. ये principal axis हो गया और ये vertical y axis हो गया. तो साइन कन्वेंशन क्या बोलता है कि कोई भी डिस्टेंस इज ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल. सभी डिस्टेंस को हम पोल से मेजरमेंट करेंगे, और एनीथिंग मेजर्ड टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द पोल इज टेकन एज पॉजिटिव, एंड एनीथिंग मेजर्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल इज टेकन एज नेगेटिव. ये दिमाग में उतार लेना. एनीथिंग मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, एनी काइंड ऑफ हाइट measured above principal axis is taken as positive, and perpendicular also. Anything which is below principal axis and perpendicular to it is taken as negative, because this upward goes towards positive y direction and this downward goes towards negative y direction. This one goes towards positive x direction and this one goes towards negative x direction. Okay, this can be remembered in this way also. Look at here, this is the direction of incident ray. If any distance is measured in the direction of incident ray, that is taken as positive, and if anything is measured against the direction of incident ray, is taken as negative. इस तरह से भी हम देख सकते हैं और इस तरह से भी देख सकते हैं. Anything towards the positive, to the right side of the pole is taken positive. Any distance to the left side of the pole is taken as negative. तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन के हिसाब से लेना या पोल का लेफ्ट साइड या राइट साइड के हिसाब से लेना एक ही बात है. जो राइट साइड जा रहा है पॉजिटिव, जो लेफ्ट साइड जा रहा है नेगेटिव. कहाँ से स्टार्ट? पोल से स्टार्ट कहाँ से होगा? पोल से होगा. पोल से राइट साइड में जो भी हम लेते हैं वो पॉजिटिव और लेफ्ट में लेते हैं नेगेटिव. क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए कि ray of light is always taken from left to right. Incident ray of light is always taken from left to right. ये कन्वेंशन है, ठीक है. कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कोई ऐसा कर देता है, मान लो ये कनकेव मिरर है
ये प्रिंसिपल एक्सिस है। कोई कोई क्या करता है, इधर से रे ले लेता है, रे इधर से ले लेता है। अगर इधर से रे आया, यहाँ ऐसे आया रे, है ना, ऐसे रे आया तो वो रिफ्लेक्ट तो होगा, रिफ्लेक्ट तो होगा, लेकिन डिस्टेंस के मामले में अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से ये गलत हो जाएगा, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, कौन सा पॉजिटिव ले कौन सा नेगेटिव ले। तो अगर हम ऐसा ना करके ऑलवेज वी टेक रे, इंसिडेंट रे ऑलवेज फ्रॉम द लेफ्ट साइड, देन क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन सिस्टम हमारा सही आ जाएगा। जो भी हम इधर ले रहे हैं, इस साइड मेजरमेंट कर रहे हैं, पोल को हमने ओरिजिन मान लिया, पोल इज ओरिजिन। हाँ, जो भी उधर ले रहे हैं पॉजिटिव एक्स की तरफ हो रहा है, और वो पॉजिटिव, देखो यहाँ पे पॉजिटिव, जो भी पोल से इधर, ओरिजिन से इधर हो रहा है वो नेगेटिव एक्स की तरफ हो रहा है। देखो तो नेगेटिव एक्स की तरफ क्या होगा, नेगेटिव होगा, जैसे नेगेटिव इंटीजर होता है। और कोई भी हम ऊपर की तरफ लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस का एक्स एक्सिस ऊपर लेते हैं तो वो पॉजिटिव लेते हैं, कोई भी नीचे लेते हैं तो वो नेगेटिव लेते हैं। तो रे ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को अगर हम इधर से लेंगे तो इसके साथ मैचिंग हो जाएगा, तो याद करने में इजी होगा। चलो याद करते हैं। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल एंड एनी डिस्टेंस मेजर्ड टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द पोल आर टेकन पॉजिटिव, और यू कैन से एनी डिस्टेंस मेजर्ड in the direction of incident ray is taken as positive. Any distance measured towards the left side of the pole is taken as negative. That means any distance measured in the direction opposite to incident ray is taken as negative. Any distance or height measured above the principal axis and perpendicular to it is taken as positive, and any distance measured below the principal axis and perpendicular to it is taken as negative. ये perpendicular होता है, दिस परपेंडिकुलर, ये हो गया। अब लिखते हैं साइन कन्वेंशन नंबर 1, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड। डिस्टेंस मतलब किसका डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस मिरर से, और फोकस का डिस्टेंस मिरर से, पोल से, यानी कि फोकल लेंथ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है ना, पोल से, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनको कहते हैं डिस्टेंस। और हाइट भी डिस्टेंस की जैसे ही है, ये हाइट और ये हाइट, ठीक है। तो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर एज ओरिजिन, पोल को हमने ओरिजिन मान लिया। अच्छा, नंबर 2, ऑल डिस्टेंसेस measured to the right side of the pole is taken as positive, and all distances measured to the लेफ्ट साइड, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन बोलने से भी होगा, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव, ऐसे बोलने से भी होगा। एक्चुअली होता वही है, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए मैंने इस तरह से लिखा लेफ्ट और राइट, क्योंकि हमने फिक्स कर दिया कि रे इधर से ही है, वो भी लिखना पड़ेगा। लेफ्ट साइड आर टेकन एज पॉजिटिव, नेगेटिव, सॉरी लेफ्ट साइड में नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव ना, टेकन क्या है नेगेटिव, ये हो गया लेफ्ट साइड का नेगेटिव, राइट साइड का पॉजिटिव, लेफ्ट साइड का नेगेटिव, राइट साइड का पॉजिटिव। थर्ड वाला क्या है कि इंसिडेंट रे दैट इज ऑब्जेक्ट is always taken from left to right. Incident ray is always taken from left to right. That means object को हमेशा लेफ्ट में रखेंगे, जो ब्रैकेट में लिखा है थोड़ा सा। Object is always placed at the
to the left side of the mirror, whose image has to be formed. अच्छा, number 4, all heights here, heights are distant also, heights above the principal axis are positive, and all heights below principal axis are negative. बस इतना याद करने से काफी है. All distances are measured from the pole. कोई भी डिस्टेंस हम पोल से स्टार्ट करेंगे. नंबर 2, this is measured to the right side of the pole positive, to the left side of the pole negative. Incident ray is always taken from the left to right. लेफ्ट से आता हुआ राइट की तरफ जाता हुआ, लेफ्ट से आकर के मिरर में टकराएगा, फिर एक रिफ्लेक्शन होगा और कहीं जाके मीट करेगा वगैरह वगैरह. ठीक है. बट वी टेक इंसिडेंट रे फ्रॉम द लेफ्ट साइड. नेक्स्ट क्या लिखा है? ऑल द हाइट above the principal axis are taken as positive and below taken as negative, exactly like Cartesian system of x-axis and y-axis. अगर ये याद है तो याद ही है सभी को, तो ये भी याद हो जाएगा इसी की जैसे ही है. कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा. अच्छा, ये हो गया साइन कन्वेंशन. अच्छा, अब हम करेंगे रे डायग्राम. रे डायग्राम बनाने के लिए बच्चों, टू ड्रॉ द रे डायग्राम वी हैव टू नो some special rays of light coming from an object, okay, or coming from a luminous body. So in which direction or in which manner rays are coming and striking the mirror, and after reflection what will be the direction of the reflected rays. In what manner incident rays are incident, and where will be the direction, what will be the direction of reflected rays. Okay, this property of incident ray and reflected ray we have to know. There are 4 special rays. How they will behave after reflection, that we will draw and understand, and then according to that we will draw the ray diagram to show the formation of image by a spherical mirror. Clear? Okay. So what are the, for ray diagram we have some special rays. So let us write down some special rays and their direction and the direction of the reflected rays. ठीक है, अपने तरीके से लिखा ये कुछ स्पेशल रेज जो मिरर में पड़ रहे हैं और रिफ्लेक्टेड रेज का डायरेक्शन को लेते हुए कुछ देयर आर सम स्पेशल रेज. रे नंबर 1, पहले डायग्राम बना लेते हैं. ये कॉन्केव मिरर और ये कन्वेक्स मिरर. ये शेडिंग बैक साइड और इसका शेडिंग यहाँ पे बैक साइड. तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. ठीक है. अगर कोई जो रे है ना ये पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस का, ये क्या है भाई? पी एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज आल्सो प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, एंड दिस इज पोल. This is also pole. Clear? If we take ray number 1, this is ray number 1. The ray coming from an object. कहाँ से आ रहा है ये रे? है ना? बीच से पढ़ना नहीं है, पूरा डिटेल में जानना है. रे कहाँ से आ रहा है? कहीं से आ रहा है, किसी ऑब्जेक्ट से आ रहा है या किसी लुमिनस बॉडी से आ रहा है. हो सकता है किसी एक वॉल कैलेंडर से आ रहा है, या हो सकता है एक कैंडल से आ रहा है. तो इफ दिस रे हैज कम और इंसिडेंट इज कमिंग either from
from an object that is non-luminous body due to light उसमें पड़ा रिफ्लेक्ट होकर फिर इधर मिरर की तरफ आ रहा है, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है कि एक ल्यूमिनस बॉडी है जो लाइट खुद ही प्रोड्यूस कर रहा है, वहाँ से भी रे डायरेक्टली आ सकता है, ठीक है। अगर लुमिनस बॉडी से रे आया तो लुमिनस बॉडी का ही इमेज बनेगा, और किसी ऑब्जेक्ट से रे आया तो उसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। अच्छा, तो इन व्हाट मैनर दिस इंसिडेंट रे इज कमिंग? इट इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। डायरेक्शन देखो, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर पैरेलल आता है तो वो फोकस से गुजरेगा। अगर फोकस कहाँ पे है, कैसे लोकेट करें? ये जो मिरर है ना, इसको एक कंप्लीट स्फीयर बना लो। इमेजिन करो, स्फीयर बनाने से ऐसा कुछ होगा। यू हैव टू मूव योर हैंड लाइक दिस एंड जस्ट गेस वेयर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बट इन पेपर व्हेन यू ड्रॉ प्रॉपर डायग्राम, यू हैव टू टेक कंपास and draw a line, long line first, long line like this, and take the compass, place anywhere and draw an arc, okay, and this will be pole, and this side you have to draw the shading or painting, okay, and wherever you have placed the compass आपने जहाँ रखा था वो हो जाएगा C। ड्रॉ करते वक्त compass कहीं ना कहीं रखा था ना, तो वो हो जाएगा C, और ये P हो गया। और C और P का जो मिड पॉइंट है बच्चों, मिड पॉइंट, C और P का मिड पॉइंट को हम F मानेंगे। पिछले वाला वीडियो का डायग्राम देख लेना, कैसे हम लोगों ने फोकस निकाला था, कैसे फोकस को डिफाइन किया था। तो ये हो गया फोकस। तो अगर ये इसका C कहाँ होगा, ऐसे करके करने से यहाँ होगा C, तो ये दोनों के बीच में F ये हो गया, ये F हो गया मिड पॉइंट। इफ PC is 6 centimeter, then PF will be 3 centimeter. If PC is 4 centimeter, then PF will be 2 centimeter. So if you have taken 4 centimeter radius and you have drawn the arc to make the mirror, that means your radius of curvature is 4 centimeter. So where will be your F? Your F will be obviously from P at distance of 2 centimeter. That will be F. तो पहले मिरर को बना लेना है, P लिखना है, फिर C लिखना है, जहाँ पे कंपास रखा उसको C लिखना है, उसके बाद में उसके मिड पॉइंट में F लिखना है। इतना लिखने के बाद ये रे हमको लेना शुरू करना है। After writing P, C and F, we have to take the parallel ray parallel to principal axis, ये लेना है। तो रूल क्या बोल रहा है कि if the ray comes parallel to principal axis, it will return through focus. It will return through focus. A ray of light incident on the mirror and parallel to the principal axis. A ray of light which is parallel to principal axis and the incident on the mirror returns through focus after reflection. तो ये हो गया रूल। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें भी एक पैरेलल रे ले लिया। इसका सेंटर किधर है? सेंटर तो इधर है, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कुछ होगा। ये सेंटर है, इन दोनों का बीच का जो पॉइंट है, मिडल पॉइंट, फोकस, उसका फोकस इधर है। हाँ, कन्वेक्स मिरर का फोकस इधर होता है ना। तो पैरेलल आया तो ये दिस आल्सो विल रिफ्लेक्ट इन विच डायरेक्शन? इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस। ये पहले भी मैंने डिस्कस किया था, इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस। सो फॉर कनकेव मिरर the incident ray parallel to principal axis and incident on the concave mirror directly reflects through the focus directly, and in case of convex mirror incident ray which is parallel to principal axis reflects, travels after reflection, travels in the direction of focus, not through the focus, in the direction of focus. यहाँ आके यहाँ टकराया और ये उस तरफ तो पार नहीं होगा ना, यहाँ से रिटर्न करेगा। जब रिटर्न करेगा तो किसके डायरेक्शन में रिटर्न करेगा? एफ के डायरेक्शन में। तो पहले इस पॉइंट को एफ के साथ मिला दो,
डॉट 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 करके मिला दो, उसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाओ. So this is the direction of reflected ray. So let me say once again. In case of concave mirror or incident ray of light parallel to principal axis and incident on the mirror will pass through the focus directly after reflection. In case of convex mirror, a ray of light which is parallel to principal axis and incident on the mirror will reflect in a direction of the focus. Will reflect in a direction of the focus. Not through the focus, reflect in a direction of the focus. So you have to join the focus first with dotted lines and then you have to draw straight. Here no need to draw dotted lines. Comes and goes. Okay. So to remember you can say incident ray comes parallel and goes through the focus. यहाँ पे क्या बोलेंगे? Incident ray comes parallel principal axis and goes in the direction of focus. Goes in the direction of focus. Okay. तो क्या लिखेंगे? A ray of light parallel to P axis and incident on a spherical mirror passes directly through the focus in case of concave focus and focus or passes or you can say return also. Return passes in the, not directly, in the direction of focus. Direction of focus in case of convex. तो ध्यान से लिख लेना, अच्छी तरह से और याद कर लेना. A ray of light parallel to principal axis and incident on a spherical, दोनों के लिए बोल दिया. Spherical mirror passes directly through the focus in case of concave and it passes along the direction of focus in case of convex after reflection. ये हो गया, इसको मिटा दूं. ये भी हो गया. अच्छा, ये भी हो गया. अच्छा, अब लिखते हैं दूसरा वाला. ठीक है. नंबर 2 रे नंबर 2 कनकेव कॉन्वेक्स. एक साथ करना है. दिस इज द बैक साइड, प्रिंसिपल एक्सिस, बैक साइड, होल. This is यहाँ हो गया सेंटर ऑलमोस्ट. ठीक है. बट when you need to draw in paper you have to take exact length of the radius and with which you have to draw the arc and complete the mirror, and then that radius becomes the length between P and C, and middle point you have to fix, that becomes F. Okay, that becomes F. Okay, that becomes F. And here also, if you complete this sphere, then this the center of this sphere will become C, and the midpoint between P and C will become F.
ओके, इस तरह से कंप्लीट करना है। अब दूसरा रे कैसे लेंगे? थ्रू द फोकस। कैसे लेंगे? थ्रू द फोकस लेंगे ना। तो थ्रू द फोकस लेंगे ऐसे करके। तो अगर वो थ्रू द फोकस जा रहा है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल आ जाएगा, ऐसे पैरेलल आ जाएगा, यहाँ से ऐसे पैरेलल आ जाएगा। पैरेलल मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे कैसे होगा फिर? यहाँ पे इंसिडेंट रे is incident थ्रू द फोकस। फोकस को क्रॉस करने के बाद मिरर के साथ स्ट्राइक किया। रिमेंबर दिस थिंग, इंसिडेंट रे इज ट्रैवलिंग थ्रू द फोकस एंड देन स्ट्राइकिंग द मिरर। तो यहाँ क्या हो रहा है? इट ऑल्सो विल ट्रैवल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोकस, ऐसे करके, ऐसे, ऐसे करके, ऐसे। वो जा कहाँ रहा था? फोकस की तरफ जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही मिरर यहाँ पे आ गया। दैट मीन्स इट इज ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस, इट इज ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस and but it cannot reach focus. It was traveling in the direction of focus but it cannot reach focus. It has to return from here. यहीं से रिटर्न करना पड़ेगा उसको। तो कैसे जाएगा वो? If it incident in the direction of focus, then it will return in parallel manner. Parallel. It will return parallel to principal axis. यहाँ भी कोई पैरेलल हुआ, यहाँ भी पैरेलल हुआ, लेकिन ये फोकस में पहुंचने से पहले ही, और यहाँ पे फोकस से गुजरने के बाद मिरर में स्ट्राइक किया, उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो गया। ठीक है, कैसे देखेंगे इसको? अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस एंड इंसिडेंट ऑन द कनकेव मिरर रिमेन्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसमें a ray of light incident in the direction of focus remains parallel, focus in case of convex remains parallel after reflection. इधर लिखेंगे a ray of light incident on और spherical, दोनों को साथ में लिखेंगे, on spherical mirror, on spherical mirror, a ray of light incident on a spherical mirror through the focus or in the direction of focus, in the direction of focus remain parallel। अच्छा, इन लाइन फोकस यहाँ क्या करेंगे? थ्रू द फोकस में हम करेंगे, यहाँ लिखेंगे इन केस ऑफ कॉनकेव, और इन द डायरेक्शन ऑफ, और इन द direction of focus, in the direction of focus in case of convex, क्या लिखा? a ray of light incident on a spherical mirror through the focus in case of concave or in the direction, देखो डायरेक्शन है, ये सिर्फ डायरेक्शन है, थ्रू नहीं हो रहा है, or in the direction of focus in case of convex will return parallel to principal axis after reflection.
आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये हो गया सेकंड वाला, रे नंबर 2। अच्छा, अब रे नंबर 3 करते हैं। यही कर लेते हैं रे नंबर 3। रे नंबर 3 तो बहुत आसान है। सी से गुजरेगा वो। मान लो ये कनकेव है और ये कन्वेक्स है, हो गया। हम लोग हमेशा मान रहे हैं, मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? मान रहे हैं। हाँ, every time we are drawing concave and convex. Principal axis, ये पोल सी राउंड हमने इमेजिन किया, सी लगा दिया, और ये कंप्लीट स्क्वायर इमेजिन किया ऐसे करके, और इसका सी कहाँ से होगा? मान लो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, इसका सी हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया। ऐसे ये फ्री हैंड ड्राइंग के लिए है पेपर में, लेकिन वो फ्री हैंड से नहीं चलेगा काम। या फिर यूज कंपास, पर्टिकुलर लेंथ ऑफ द रेडियस। अब इसका मिड पॉइंट मैंने एफ कर दिया, इसका एफ कर दिया है ना, लगभग ये भी होगा। अच्छा, एफ कर दिया और ये पी हो गया। अब मैं क्या करूँगा, एक जो रे है ना, सोचेंगे कि इंसिडेंट रे सी से आ रहा है ऐसे, तो सी से कोई भी जाता है तो वो नॉर्मल हो जाता है यहाँ पे, नॉर्मल। यस और नो? The radius joining the point of contact of a tangent is always perpendicular. So this is the radius, and here is, you can imagine here there is small tangent, so it will be right angle. But since the ray is falling normally through center of curvature, normal incidence कैसा होता है? देखो, मान लो ये प्रिलिमिनर है, सीधा ऐसे आ गया नॉर्मल इंसिडेंस, तो वो ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, उसी रास्ते वापस चले जाएगा ऐसे। एंगल आई 0, एंगल आर भी 0। इफ अ रे ऑफ इंसिडेंट रे इज फॉलिंग ऑन द मिरर नॉर्मली, देन इट विल रिटर्न टू द सेम पाथ इन ऑपोजिट डायरेक्शन. It is called retrace. It will retrace its path. So if ray of light is going through C, it means it is normal to the mirror. है कि नहीं? नॉर्मल है कि नहीं है? तो ये रेडियस है, ये टेंजेंट है छोटा सा। ओके, तो मैंने इससे पहले बोला था कि अगर मान लो एक ऐसा है, ये मिरर है ना, और जब यहाँ से कोई अब रे ऐसे आता है और यहाँ पे सी है, यहाँ पे पी है, याद आ रहा है? हाँ, सी है, तो पहले सी को जोड़ना होता है ऐसे करके। सी को जोड़ने से हमारा नॉर्मल मिल जाएगा, नॉर्मल इस पॉइंट पे। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना है उतना एंगल बना के नीचे ऐसे लेके आओ, तो ये ऑटोमेटिक एफ से पास होगा। ये मैंने बताया था इससे पहले वाले में, ठीक है? प्लीज लुक एट दैट डायग्राम एंड दैट एक्सप्लेनेशन। सो एनी लाइन दैट जॉइंट्स सी becomes normal to the plane, normal to the mirror, okay, at that point. So if it falls normally according to this rule, it will return to the same path. तो ये ऐसे आ रहा था, फिर वैसे दिया चला गया, आ रहा था ऐसे, रिटर्न हो रहा है, हो गया डायग्राम। इसमें वही मान लो कोई रे ऐसे आ रहा है सी से, सी का डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है? ये सी है, इट वॉज इंसिडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ सी, इट वॉज इंसिडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ सी। तो ये भी तो सी से जोड़ रहा है ना, यहाँ भी तो राइट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया, यानी कि राइट एंगल में फॉल कर रहा है। राइट एंगल में अगर फॉल करेगा तो ये इसी रास्ते रिटर्न हो जाएगा, वो will retrace its path just like the mirror. So whenever incident ray is normal at any point on the spherical mirror, it will just, this point will behave as a plane mirror and it will be exactly like this. Okay? So क्या लिखे इसमें? A ray of light incident to the mirror, कोई भी mirror through
C or in the direction of C, यहाँ लिखता हूँ हाँ, it will retrace its path after reflection. यो ठीक है, क्या क्या बोला? If a ray of light is incident on the mirror, spherical mirror, through C or in the direction of C, it will retrace its path. इसका पाथ रिट्रेस करके वापस चले जाएगा, just like normal incidents. बस हो गया। और एक रे बचा हुआ है जो पोल से जाएगा, ठीक है? पोल, it will be incident at the pole in both the cases. मिटा दें इसको। Okay. Fourth one now. Fourth rule. These are the rules. याद रखना, ये rules है। We don't forget the rules. We don't forget the rule because we are not ruled. Okay. Rule number 4. डायग्राम बना लेते हैं पहले, फिर उसके बाद लिखते हैं। ये कनकेव मिरर हो गया, ये कन्वेक्स हो गया, बड़ा बड़ा बना दिया, जगह काफ़ी है। अच्छा, बड़ा बड़ा बना दिया, जगह काफ़ी है। ये पोल हो गया, ये पोल ना, प्रिंसिपल एक्सिस सी है ना। ये अगर ऐसे करके कंप्लीट करते हैं तो सी यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। हाँ, मैंने ऐसे ही एज्यूम करके ही लिया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। When you draw in the paper, take certain measurement of the radius and draw the arc, you will get C. Then fix midpoint. Here also chapter C. हाँ यहाँ तो, और ये पोल हो गया, इसका मिड पॉइंट F हो गया, इसका मिड पॉइंट F हो गया। ये काम सबसे पहले करना है कोई भी रे डायग्राम में, ये काम पहले करना है। अच्छा, अब मैंने क्या बोला? लास्ट वाला, थर्ड वाला तो हो गया C से। अब लास्ट वाला कहाँ से आएगा? P से आएगा। इट विल बी इंसिडेंट ऑन P, कमिंग फ्रॉम वेयर? सम ऑब्जेक्ट। मान लो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इसका हेड यहाँ था, ऑब्जेक्ट का हेड, तो हेड से आ गया, ठीक है। टेल से भी जाएगा ऐसे, यहाँ से अगर ऐसे सीधा चला गया रे, यहाँ से निकला हुआ रे ऐसे गया, यहाँ पे तो नॉर्मल है तो सीधा रिटर्न आ जाएगा ये। एनी रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द टेल ऑफ द ऑब्जेक्ट विल just travel along principal axis, and when it strikes the mirror, it will strike at right angle. At that time, it will follow the rule of normal incidence. Then it will retrace its path. ये भी रे है, रे डायग्राम के अंदर ये भी आ जाता है। अच्छा, तो मान लो ये ऐसे आया, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अगर ऐसे आया तो एक सर्टेन एंगल पे इंसिडेंट हुआ। एट दैट टाइम दिस पोल बिहेव्स लाइक अ प्लेन मिरर। In fact, all the points are plane mirror. And principal axis, ये principal axis जो है ना, ये एक्ट करता है नॉर्मल की तरह। So think P is plane mirror, incident ray, normal. So angle of incidence, this is I. The angle of incidence must be equal to angle of reflection because it is a plane mirror. Every point on the spherical mirror is a plane mirror. Every point on the spherical mirror is a plane mirror. Again, every point on the spherical mirror is a plane mirror. It's a small plane mirror. So whenever we have light strike that point, then that point itself will behave like a plane mirror, and there will be reflection by maintaining the laws of reflection. So angle I is equal to angle R. It will come like this. Same angle बना के ऐसे ये ऐसे रिटर्न होगा, ये something like this. एंगल को बराबर करना है, अगर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो उतना ही डिग्री का बना के इधर लाना है, ठीक है। फॉर दिस यू कैन टेक द हेल्प ऑफ कंपास। ये एक लिया, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर दिया,
हाँ, करने के बाद में थोड़ा बड़ा कर दो, बड़ा कर दिया उसके बाद ये आर्क का मेजरमेंट कर दिया। यहाँ भी हमने एक आर्क नीचे की तरफ ड्रॉ कर दिया, एक आर्क यहाँ से ड्रॉ कर दिया और ये मेजरमेंट लेकर के कंपास से इसको कट कर दिया, तो ये सेम एंगल बन जाएगा नीचे। तो दिस इज आर, दिस इज आर। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। So if the ray of light is incident through P, then it will return, it will reflect in such a way that P becomes the plane mirror and principal axis becomes the normal का काम करेगा और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इनफैक्ट इंसिडेंट रे कहीं भी पड़े, यहाँ पड़ा इंसिडेंट रे ऐसे, यहाँ पर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, बिकॉज दिस पॉइंट इज सपोज ए है तो पॉइंट ए विल एक्ट एज अ प्लेन मिरर और ये मान लो यहाँ पे सी है, ए सी को ज्वाइन करने वाला जो रेडियस है ये बन जाएगा नॉर्मल। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। हर जगह पर होता है, सिर्फ पी में नहीं। ये तो एक आसानी मैंने ड्राइंग करने में आसान होगा इसलिए ऐसा लिया है। सो द फोर्थ वन, इसमें क्या करेंगे, इसमें वही यहाँ से मान लो ऑब्जेक्ट से कोई रे आ रहा है ऐसे, पी में इंसिडेंट है तो ये क्या होगा, एक सेम एंगल बना के इधर चला आ जाएगा, रिफ्लेक्ट। द इंसिडेंट रे, अ रे ऑफ लाइट which is incident on the spherical mirror at the pole, it will just reflect such that P pole is the plane mirror and principal axis is the normal. It will just reflect as in the case of plane mirror and pole will act as plane mirror and principal axis will act as normal. So, ray of light incident on the pole of the mirror, both the mirror, okay, of the mirror reflects as if the pole is the plane mirror and principal axis is the normal at the point of incidence. At the point of incidence. Normal at the point of incidence. Here. And it will maintain laws of reflection there. Here also I is equal to R. तो ये हो गया 4 rules. चलो एक बार रिवाइज करते हैं। और ray of light incident parallel to the principal axis, it will return through the focus, or if it is parallel to the principal axis, it will return in the direction of focus for convex mirror. Second one, if the ray of light is through the focus or in the direction of focus, after reflection it will travel parallel to the principal axis. Third one, if the ray of light is through the center of curvature C, if it is incident through the center of curvature or in the direction of center of curvature, it will retrace its path after reflection. It will reflect, but it will retrace its path. It will return to the same path and in the opposite direction. और fourth वाला क्या था? If any ray is falling on the pole, in both the cases like concave mirror and convex mirror, it will just maintain the law of reflection, thinking that pole is a small plane mirror and the principal axis is just like normal. So angle of incidence is called angle of reflection. But in fact, the matter of fact is that every point on the plane mirror can behave as a plane mirror. Every point on a plane on a spherical mirror, every point on a spherical mirror can behave as plane mirror.
सिर्फ पोल ही नहीं, बाकी सभी पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन जब पोल में पड़ा तो पोल भी तो पिरामिड जैसे बनेगा, तो किधर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, एंगल आई को एंगल आ के बराबर कर दो, हो गया रिफ्लेक्ट। हमें एक डायरेक्शन मिल गया रिफ्लेक्टेड रे का। हमारा मकसद क्या है, रे को रिफ्लेक्ट कराना, रे को रिफ्लेक्ट कराना, और रिफ्लेक्ट करने के बाद में उनको कहीं ले जाके मीट कराना। क्योंकि मैंने पहले क्या बोला था, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड only and only when the rays of light meet once again, either really or virtually. लाइट को दोबारा मीट होना ही है, तब जाकर के इमेज बनेगा। अच्छा, तो ऐसे करते बस हो गया। बेस्ड ऑन दिस रूल्स वी विल ड्रॉ रे डायग्राम्स to show the formation of image by concave mirror. First concave mirror and then convex mirror. Okay, so I will erase it. I will erase it and I will write with a new fresh pen. So next topic is drawing ray diagram to show the formation of an image of an object by a concave mirror. This one. Okay, so get ready, let's start. बस हेडिंग डाल दो, हेडिंग लिख दो, ठीक है। सबसे पहले करेंगे हम लोग नंबर 1, when the object is at infinity, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है, ये कॉन्केव मिरर ले लिया, दिस इज बैक पोर्शन, दिस विजुअल एक्सिस, कंप्लीट द स्फीयर, लोकेट द सेंटर. Okay, suppose okay, I have drawn a line and then I don't know how to draw the concave mirror. I have taken the compass 6 cm and then I have drawn the arc. So where I place the compass, that will be C, and where it cuts the line will be P. So I got the radius of curvature. It was 6 cm. Now I will measure 2 cm. How much? 2 cm. Sorry, 3. 6 no. It was 6. I will measure 3 cm and I will mark a point. It will be focus. ये मेरा तरीका है करने का। लाइन लिया, सबसे पहले कंपास लिया, 6 सेंटीमीटर लिया, आर्क ड्रॉ कर दिया, जहाँ पे कंपास रखा था C लिख दिया, जहाँ पे इसको काटा P लिख दिया, और 6 लिया था पहले तो P से आप 3 लेंगे, 3 लेने से F बन जाएगा। तो when object is at infinity, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है तो रे कैसे आएंगे रेज? हाउ द रेज विल कम? Rays will come parallel. Okay, the rays will come parallel. एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया। चलो सोच लेते हैं, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट था, बहुत दूर में, कहाँ पे था? इन्फिनिटी में था, एट इन्फिनिटी, बहुत दूर में था ऑब्जेक्ट। बहुत दूर से जब रेज आते हैं तो ऑलमोस्ट उनको हम पैरेलल मान लेते हैं, पैरेलल, ठीक है। So according to rule number 1, come parallel, go focus. If the ray comes parallel to the principal axis, it will go through the focus. ये तो हम लोगों ने लिखा था, है ना? And this also comes parallel to the principal axis and incident on the mirror, it will return to the focus. Really, it will
it will really return to the focus, really, and they will really meet at the focus. तो अब बताओ इमेज कहाँ बना, PNS, P क्या होता है भाई, पोजीशन, पेपर पोजीशन ऑफ इमेज, N क्या होता है, नेचर ऑफ इमेज, S क्या होता है, साइज ऑफ इमेज। अब डायग्राम देख के सब पता करना है। पोजीशन कहाँ बना, पोजीशन at F. Where is the image formed? Image is formed at F. What is the nature? Real or virtual? How will you decide whether the image will be real or virtual? We will decide how the reflected rays are meeting. There are two methods of meeting, either really directly or virtually. ये directly meet हो रहे हैं, really meet हो रहे हैं, तो real image, nature, real and inverted. एक चीज याद रखना हमेशा, जहाँ रियल होगा वो इन्वर्टेड होगा, इसको याद कर लो, VERI, very. If it is virtual, it will be always erect. If it is real, it will be always inverted. तो रियल इन्वर्टेड, ऐसे इन्वर्टेड। अच्छा, साइज देखो बहुत छोटा हो गया, ऑब्जेक्ट को देखो कितना बड़ा था, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था और इमेज ये पॉइंट बन गया, इमेज इतना छोटा हो गया, पॉइंट हो गया, तो हाईली डिमिनिश्ड, तो बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, और उसको बोलेंगे पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। तो रे डायग्राम बनाने के बाद हमको क्या लिखना है, PNS. So where is the object formed, what is the position, where is the image formed, and what is the nature of the image, and what is the size of the image. We have to write from the diagram. We have to study the diagram and then write. Second वाला केस देखते हैं, when the object is beyond C. इसमें मैं एक थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे मेरा कनकेव मिरर है, देख रहे हो, कनकेव मिरर है। मैंने पहले ऑब्जेक्ट ऐसे कर दिया, ऑब्जेक्ट को दूर में रखा, ठीक है, तो एक और ग्रेडी कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट को मैंने दूर में रखा, यहाँ कनकेव मिरर है, फील हो रहा है, ऑब्जेक्ट को मैंने दूर में रखा, ऐसे कनकेव मिरर है, इसका इमेज यहाँ बना फोकस में, लेकिन पॉइंट साइज छोटा, इतना बड़ा नहीं बना। अच्छा, अब क्या किया मैंने, यहाँ पर कनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा पास में लेके आ रहा हूँ। कहाँ लेके आ रहा हूँ, सी के थोड़ा पीछे, यहाँ लेके आ रहा हूँ ऑब्जेक्ट को। पहले इंफिनिटी में था, यहाँ आ रहा हूँ। तो अगर मैंने यहाँ लाया, थोड़ा पास में लाया, सी के पास में लाया, तो ये इमेज कहाँ जाएगा, पहले एफ में था, देखो इसको मैंने यहाँ रखा था इंफिनिटी में, तो इमेज यहाँ बना, छोटा सा बना, उसको मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, ये इधर जाएगा, इधर नहीं, इधर, ये इधर जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इमेज विल बी ऑपोजिट। ऑपोजिट, ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है मिरर के पास और इमेज मिरर से दूर हटता जा रहा है। सो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट यू कैन से, और मूवमेंट यू कैन से, चेंज ऑफ पोजिशन यू कैन से, डायरेक्शन ऑफ change of position of the object and the image will be just opposite. अगर ऑब्जेक्ट सामने की तरफ जा रहा है मिरर की तरफ, तो इमेज दूर चले जाएगा। तो ऑब्जेक्ट अगर मैंने यहाँ रखा तो इमेज यहाँ नहीं रहेगा, इमेज थोड़ा इधर आ जाएगा, यानी कि सी और एफ में आ जाएगा। ये मैंने फील कराया, ऐसा होता है। यहाँ रखा तो पहले फोकस में था, जब यहाँ था ऑब्जेक्ट तो ये फोकस में था, अब यहाँ पे आ गया तो थोड़ा इधर आ जाएगा, क्योंकि इसका मूवमेंट इधर है, इसका मूवमेंट इधर होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। करते 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 सी में वो दोनों मीट हो गए, सी में दोनों मीट हो गए। ऑब्जेक्ट उधर से सी में आया तो इमेज भी सी में ही बनेगा। देखो
ऑब्जेक्ट उधर से सी में आया तो इमेज भी उधर से ऑपोजिट डायरेक्शन में आते आते वो सी में आ गया। उस टाइम क्या होगा, ऑब्जेक्ट का जो साइज है और इमेज का साइज बराबर होगा। उससे पहले डिमिनिश्ड होगा, उससे पहले इमेज डिमिनिश्ड होगा। जब सी में आ गया तो इक्वल हो जाएगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा बताओ। अब ये ऑब्जेक्ट आगे चला जा रहा है, इमेज पीछे आ जाएगा ऐसे। उस टाइम क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा, इमेज विल बी एनलार्ज्ड। ऑब्जेक्ट तो वही का वही है। अच्छा, फिर नेक्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट एफ में चला गया तो इमेज पीछे आते आते एकदम चला आएगा इन्फिनिटी में। ये देखो मेरा हाथ देख लो, ऑब्जेक्ट आ गया एफ में तो इमेज आ जाएगा इन्फिनिटी में। अच्छा हो गया। अभी उसको शांति नहीं मिली, ऑब्जेक्ट और सामने जा रहा है, ऑब्जेक्ट और सामने जा रहा है। अगर यहाँ पहुंच गया ऑब्जेक्ट तो इमेज के लिए इधर जगह नहीं है। देखो इमेज के लिए इधर जगह नहीं है तो वो एक ही बार पीछे बनेगा, ऐसे यहाँ बन जाएगा और बड़ा बन जाएगा। दिस थिंग वी हैव टू ड्रॉ। When the object is beyond C, अब इसका ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो ये हुआ तो ये हो गया कॉन्केव मिरर। आप इसका सी यहाँ पे ले लेते हैं ऐसे। चलो ये एफ ले लिया, गोल ले लिया। ये डायग्राम रॉन्ग होगा अगर हमने फ्री हैंड से ड्रॉ किया तो। बाकायदा एक सर्टेन लेंथ सेंटीमीटर में लेके आर्क ड्रॉ करेंगे, सी फिक्स करेंगे, पी फिक्स करेंगे, उसके बाद एफ फिक्स करेंगे और ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो डायग्राम रॉन्ग नहीं होगा, अदरवाइज डायग्राम रॉन्ग हो जाएगा। So don't try free hand as I am doing here. I told you a number of times. So where is the object now? Beyond C. ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना है, यहाँ ऐसे यहाँ रखना है। अब यहाँ से एक रे नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ रे नंबर 1 से ही हो गया। ऊपर एक नीचे एक लेयर, इंटरसेक्शन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, रियली मीट हो गया। मीट करने से का इमेज बनता ही है। अच्छा, अब इसमें इस ऑब्जेक्ट में देखो, एक तो रे नंबर 1 जो 4 रूल बताया था, रे नंबर 1 हमने लिया, इट इज कमिंग पैरेलल फ्रॉम द हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट, कमिंग पैरेलल एंड इट विल रिटर्न टू द फोकस। और एक चीज याद रहे कि ये हेड से, ऑब्जेक्ट के हेड से सिर्फ एक ही रे नहीं निकलता है, सैकड़ों रेज निकलते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 2 चाहिए, बस 2 या 3 मैक्सिमम। हाँ, सैकड़ों रेज निकलते हैं ऐसे, इधर 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 भी इधर भी इधर भी रेज निकलते हैं। वी टेक ओनली दोज रेज which are parallel to the principal axis. ओके, एक ले लिया। अब हमें और एक रे चाहिए, क्या करें, फोकस से ले लेते हैं। रे नंबर 2, रे नंबर 2 अमॉन्ग द स्पेशल रेज। अगर फोकस से लिया तो ये पैरेलल बन जाएगा, पैरेलल इधर आ जाएगा, पैरेलल कम्स फोकस गोज पैरेलल। पहले इसमें क्या बोला था, कम पैरेलल गो फोकस। उसमें क्या बोलेंगे, कम फोकस गो पैरेलल, कम फोकस गो पैरेलल, फोकस गो पैरेलल। तो यहाँ भी हुआ, इसको यहाँ लेते हैं, यहाँ पे भी हुआ। कहाँ बना इमेज, ऑब्जेक्ट कहाँ था, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ था सी के पीछे, तो इमेज यहाँ बन गया सी और एफ के पीछे। क्यों, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में था, इमेज कहाँ बना था, एफ में, इसको थोड़ा इधर लाया तो ये कहाँ जाएगा, थोड़ा इधर जाएगा, तो कहाँ हो गया सी एंड एफ, समझ में आ गया। जब ऑब्जेक्ट यहाँ था, इमेज यहाँ था, अब ये थोड़ा इधर आ गया तो ये भी थोड़ा इधर आ जाएगा, तो सी और एफ के बीच में आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट और इमेज, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, यहाँ बना ऑब्जेक्ट ऐसे किया, ये ऐसे आ रहा है, ऐसे क्या है, यहाँ सी में उनका मुलाकात हो गया। अब वो आगे जा रहा है, ये पीछे जाएगा, आगे जा रहा है, पीछे जाएगा, आगे बिल्कुल मिरर के पास पहुँच गया,
फोकस से भी और आगे चला गया तो इसके लिए अगर जगह नहीं है, ये इन्फिनिटी खत्म, जगह नहीं है, तो वहां जाकर के खड़ा हो जाएगा। दैट टाइम इट विल बी वर्चुअल, बैक साइड जाके। इस तरह से मूवमेंट होता है ऑब्जेक्ट और इमेज का। ये जो मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है इसको याद रखना। सो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ ना, अब इंटरसेक्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। परपेंडिकुलर याद रखना, वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गया ए डैश बी डैश, अगर ये ए बी था तो। कभी कभी ये इस ऑब्जेक्ट का टेल से भी हम रे ले सकते हैं, लेकिन वो इधर उधर नहीं जाएगा, सीधा जाएगा, सीधा निकलेगा, स्ट्रेट जाएगा, फिर सीधा ऐसे वापस आ जाएगा, रिट्रेस। हाँ, तो उसका कभी कभी काम आता है, कभी काम नहीं आता है, लेकिन कम से कम टू रे, एटलीस्ट टू रेज मस्ट इंटरसेक्ट। ये बन गया। अब इसका पीएनएस लिखो, पीएनएस, पीएनएस मतलब पी क्या है, कहाँ बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ। नेचर क्या बन रहा है इसका, रियल इमेज या वर्चुअल इमेज, रियल और वर्चुअल, रियल और वर्चुअल, रियल और वर्चुअल, रियल। व्हाई रियल, बिकॉज द रेज आर मीटिंग रियली, रेज आर रियली मीटिंग, रिफ्लेक्टेड रेज आर रियली मीटिंग, ये वाला रे और ये वाला रे रियली मीटिंग, सो रियल इमेज। नेचर रियल इमेज, रियल होने से क्या होगा, इन्वर्टेड, वेरी real inverted, real and inverted, you can write, and inverted, real and inverted। साइज क्या होगा भाई, साइज ऑब्जेक्ट से छोटा दिख रहा है ना, छोटा दिख रहा है ना, छोटा। जब वो ऑब्जेक्ट इधर से सी में पहुंचा, इमेज उधर से सी में आया, तब बराबर होगा। फिर अगर क्रॉस कर दिया एक दूसरे को तो इमेज बड़ा होते चले जाएगा, ठीक है। अभी छोटा है, साइज विल बी डिमिनिश्ड, छोटा को डिमिनिश बोलते हैं, ठीक है। सो कीपिंग इन माइंड द लेंथ ऑफ द वीडियो, आई वांट टू कंक्लूड हियर। वी हैव ड्रॉन टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वी हैव फॉर्म्ड इट्स इमेज एंड वी हैव रिटन P and S, position, nature and size. There are four more positions of the object for which the image is to be formed। और उसके बाद फिर कन्वेक्स का भी इमेज बनता है। कन्वेक्स का सिर्फ दो बनता है, दो पोजीशन के लिए बनता है, और कनकेव में 6 पोजीशन के लिए इमेज बनता है। उसमें से 2 पोजीशन हम लोगों ने कर लिया, अब 4 पोजीशन बचा हुआ है, ठीक है। दैट विल बी डन इन द नेक्स्ट वीडियो। So thank you so much, keep studying, okay।